What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 28th of Jan and the markets continue to remain volatile ahead of budget. So markets 25,000 के आसपास support लिया, मल्टीपल टाइम्स 25,000 लेवल्स को ब्रीच करने को ट्राई किया बट डेली क्लोज 25,000 के नीचे दे नहीं पाए. वहां से मार्केट्स को डिमांड जो आया है उसके ऊपर 350 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट्स आज ट्रेड कर रहे थे. बट अगेन द मार्केट्स वर ह्यूजली वोलेटाइल. 150 points up, 150 points down. अगर सेंसेक्स की टर्म्स में बात करें तो सेंसेक्स went up 700 points, came down 700 points and again went up around 600 points. Amidst all this delta move, we could see some sort of a linear decay and linear crash on straddle premiums. Sensex of straddle, which is about to expire tomorrow on the monthly expiry, opened at somewhere around 750 and वहां से almost एक 200 point का एक linear crash देखने को मिला. But most of this crash is kind of not realizable because with 700 points of straddle open, markets moved up 700 points, came down 700 points and it again moved up 700 points. Unless you are trading, these tails or these hyper OTM options, usually जो theta जो decay मिला है वो आप realize नहीं कर पाते because most of the theta decay would have gone into the delta adjustment cost. But today's surprising thing is not only did Sensex straddle decayed, but we also could see a decent amount of crush in the Nifty's options. So Nifty का जो options है which are about to expire after the budget, generally usually a option premiums hold करते हैं up until the budget. So Nifty straddle was trading somewhere around 490 and intraday itself the straddle got crushed almost 70 points. So I am of the opinion that the straddles would likely to hold around these values or even spike back up as we move. Silver is moving up as if there is no tomorrow. Yet again, we are seeing another 5% green day. Just this month alone, silver has moved up almost 60%. And जो कॉमिक्स पे $116 का एक हाई बनाया था ऑन मंडे, वहां से एक डिप देखने को मिला था $103 पर. एंड अगेन टुडे द मार्केट्स ब्रीफली टेस्टेड दैट 116 लेवल्स. सो मार्केट्स कहीं ना कहीं उसी लेवल पे हॉवर कर रहा है. बट इफ $120 लेवल इज अगेन टेकन आउट, वी कुड सी अनदर बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग रैली. सो टुमारो इज सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी 520 के आसपास ट्रेड क्लोज दे रहा है. एंड एट द सेम टाइम आज कुछ काफी अच्छा प्राइस एक्शन पॉइंट्स भी डेवलप हुआ है फॉर टुमारोज एक्सपायरी. सो लेट्स to the terminal and let's see how can we capitalize on this. All right, so daily time frame पे you can see that यहाँ पे एक अच्छा support build हो चुका है because this has not happened once but it has happened twice. Markets जैसे 25,000 के आसपास आ रहा है वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा strong demand आ रहा है and वहाँ से market एक sharp up move दिखा रहा है. So people are not letting the markets close below 25,000 levels, which is some sort of a positive thing. So most probably we can ascertain somewhere around 65 to 70% probability that the range shift is gonna happen on the upside post budget. तो budget थोड़ा भी मतलब ठीक रहा तो we should be breaching this level 25,700 levels को breach करके वापस 26,000 levels के आसपास हेड करनी चाहिए. एंड द प्रोबेबिलिटी टू असर्टन दैट इज समवेयर अराउंड 65 to 70% बोल सकता है. तो 25,000 लेवल्स ब्रीच नहीं होनी चाहिए बट द मोमेंट द मार्केट्स गिव्स अ क्लोज बिलो 25,000 लेवल्स देन दैट ओपन्स अप अनदर 500 पॉइंट्स टुवर्ड्स द डाउन साइड. सो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें सो येस मार्केट हैज बीन वोलेटाइल बट कंपेयर टू द लास्ट 4 और 5 सेशंस इतना वोलेटिलिटी भी नहीं थी बिकॉज आज का जो दिन का रेंज है वो कम से कम प्रीवियस 2 या 3 रेंजेस से कम है. यू कैन नोटिस दैट द डे हाई समवेयर अराउंड 25,380 levels and the day low is somewhere around 25,190 levels. Around 200 points का ही day range था but compared to yesterday or compared to day before yesterday the markets have been swinging wildly between 400 points. But again the markets are giving a strong close and मैं continuously बता भी रहा था कि like as we head towards the expiry थोड़ा जो छोटा time frame पे जो inflection points जो बनते हैं तो वो वर्क करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है. दैट्स व्हाई आई सेड डोंट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट्स अराउंड दीज लेवल्स एंड वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर एक्सटेंशन एंड वहां से मीन रिवर्जन ट्रेड्स को प्लान करो. बिकॉज मान लो कि लाइक इफ समबडी डिसाइडेड दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ डे स्लो एंड यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न एक्सपेक्ट करके यहाँ पे मार्केट्स को लॉन्ग किए होंगे तो उनका पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कट चुका होगा एंड यहाँ पे उनको ट्रैप करके मार्केट्स फिर से एक अच्छा शार्प अपमूव दिया है. ऑलमोस्ट 25,180 से लेके 25,360 से ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का एक अपमूव दिया है इन अ स्पैन ऑफ 60-70 मिनट्स. सो यूजुअली दिस इज गोइंग टू हैपन. नीजक रिएक्शन होता है यहाँ पे लिक्विडिटी ऑब्जॉर्ब करने के लिए मार्केट्स आ जाता है एंड वहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी स्वीपिंग हो सकता है एंड वो जो लिक्विडिटी स्वीप जो होता है वो थोड़ा पेनिट्रेशन के साथ होता है. मार्केट्स 50 पॉइंट 60 पॉइंट भी मतलब मार्केट सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस के नीचे या ऊपर पेनिट्रेट करके वहाँ से एक शार्प रिवर्सल दिखा सकता है. सेंसेक्स की बात करें तो टुमारो इज सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी एंड इट अगेन वी आर सीइंग अ क्लोज समवेयर अराउंड 480 लेवल्स. सो 500 के नीचे आ गया है. जो इंट्रो
वीडियो में बात कर रहा था तब 520 के आसपास था, बट इन द लास्ट 15 मिनट्स द स्ट्रैडल हैज ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स एंड इवन नाउ इट्स कंटिन्यूसली गोइंग डाउन. सो मोस्ट प्रोबेबली कल सेंसेक्स की स्ट्रैडल ओपन होने वाला है 450 के आसपास. एंड इफ अट ऑल द मार्केट मूव्स ब्रिस्कली इन द फर्स्ट 15 to 20 minutes, लेट्स से मार्केट सेंसेक्स 300 या 400 पॉइंट्स का एक शार्प मूव दे देता है इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, देन 450 के पास ओपन होने के बाद वापस 500 के आसपास स्ट्रैडल स्पाइक कर सकता है. सो अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, डोंट इनिशिएट फर्स्ट टिक ट्रेड्स. अगर आप इनिशिएट करते भी है तो डोंट गो विद द फुल साइज. ऑलराइट, आज की सरप्राइजिंग बात यह है कि आज निफ्टी का स्ट्रैडल भी काफी अच्छा डीके दे चुका है. सो यू कैन नोटिस दैट टुडे द स्ट्रैडल वाज समवेयर अराउंड 480 एंड वी आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 408. ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का एक क्रश देखने को मिला है ऑन अ 4 DTE. स्पेशली दीज ऑप्शंस आर गोइंग टू एक्सपायर आफ्टर द बजट. तो बजट का वोलेटिलिटी इसमें प्राइस इन होना चाहिए. एंड 500 के आसपास यस 2% ऑफ निफ्टी का मूव प्राइस इन कर रहा था, बट देन सडनली टुडे वी हैव सीन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्रश. अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी लाइक बाइंग इनटू द स्ट्रैडल्स एक्सपेक्टिंग दैट ओ मार्केट्स किसी ना किसी डायरेक्शन में स्विंग करेगा ही करेगा. दोज गाइस वुड हैव बीन स्टक एट दिस पॉइंट बिकॉज मार्केट्स ये जो प्रीमियम स्पाइक हुआ था इट हैपेंड ऑन 21st itself. लास्ट वीक की प्रीमियम ऑलमोस्ट 620 के आसपास गया था एंड वहां से प्रीमियम कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा था, बट टुडे इट हैज गिवन अ प्रॉपर डिसेंट क्रश. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम बनाया था समवेयर अराउंड 500 लेवल्स. आज 500 लेवल्स के नीचे ओपन करके कंटिन्यूसली एक डाउन मूव दिखाया है. इन माय ओपिनियन अगेन एज आई सेड 400 के आसपास होवर कर लेनी चाहिए, या into the event it might even spike back up to 440 or 450 levels. But again it depends on how much weightage the markets gives into the budget. आज विक्स भी देखेंगे तो विक्स भी आज 7% ड्रॉप हुआ है, 13.5 के आसपास आ चुका है. हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो बजट के आसपास विक्स कहीं ना कहीं 16 और 16 के ऊपर ही रहता है. सो एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम स्पाइक्स गोइंग इनटू द बजट बिकॉज टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी. वी कांट से like how the market is going to behave during the expiry because most of the flows are expiry related flows. And Friday के दिन मार्केट एक्शन कैसे होगा एंड प्रीमियम्स कैसे बिहेव करते हैं दैट वुड डिसाइड बिकॉज फ्राइडे के बाद सैटरडे को अगेन वी हैव अ हॉलीडे एंड देन संडे वी हैव द मार्केट्स ओपन. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ज़्यादातर लोगों को लूर इन करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो देखते हैं कि ओ मार्केट्स टूट रहा है, मतलब स्ट्रैडल टूट रहा है, तो इफ दे गो इन एंड बिल्ड शॉर्ट वॉल पोजिशंस देन इफ द प्रीमियम स्पाइक्स बैक अप दोज पीपल विल बी अंडर ट्रबल एंड दोज पीपल विल बी रनिंग फॉर देयर कवर. सो देखना पड़ेगा बिकॉज ऐसे सिचुएशन में काफी ट्रिकी हो जाता है. इट्स लाइक अ कैट एंड माउस गेम. कौन आता है पहले, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टूड हाउ ऑप्शंस वर्क, लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टूड टर्म स्ट्रक्चर्स वर्क एंड हाउ कैलेंडर्स वर्क. सो लॉट ऑफ पीपल वुड हैव gone and bought these post event options and selling the previous dated options. एक कैलेंडर या डबल डायगोनल काइंड ऑफ ट्रेड्स बना चुके होंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम दोज काइंड्स ऑफ ट्रेड्स बैकफायर बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट कैट एंड माउस. अगर आप सही टाइम पे एंट्री करके सही टाइम पे एग्जिट किए होते देन आप बच जाते, बट थोड़ा भी आप लेट एंट्री करते या थोड़ा भी अगर अर्ली एंट्री भी करते देन ऑल्सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ट्रैप्ड एंड वंस यू स्टार्ट द ट्रेड ऑन अ रॉन्ग फुट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स लाइफ साइकिल विल बी एंडेड अप इन जस्ट सैल्वेजिंग. थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. अगर जाना है तो भी एंटरिंग द ट्रेड्स इन डिफरेंट ट्रांचेस, मल्टीपल ट्रांचेस में एंटर करो, पूरा साइज एक साथ मत एंटर करो. अगर कल की सेंसेक्स की प्राइस एक्शन ट्रेड्स के बारे में बात करें तो यस वी हैव गॉट सम डिसेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स एंड कल का जो हाई हमने डिस्कस किए थे वो कल के लिए भी वैलिड है. 80 to 800 लेवल्स. हो सकता है कि 83,000 भी कल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट्स गैप अप खुला तो. एंड अगर मार्केट्स गैप डाउन खुल जाता है तो देन आज का जो हाई है 80 to 500 लेवल्स जो हाई है वो एक लोकल टॉप बन जाएगा. बट दिस आई वुड नॉट कंसिडर एज द लोकल बॉटम फॉर द एक्सपायरी. तो ये मेरे लिए कल सपोर्ट नहीं बनेगा. यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, बड़ा इन द सेंस अराउंड 300-200 पॉइंट्स का गैप डाउन खुलता है, तो देन डेफिनेटली हायर लेवल पे ये मेरे को रेजिस्टेंस जरूर बनेगा. बट एट द सेम टाइम आई नॉट बी टू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस लेवल एक्टिंग एज अ सपोर्ट. यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट्स नीचे जाए. बट अगेन अगर मार्केट्स ब्रेक डाउन करता है तो आई वुड नॉट ट्रेड द ब्रेक डाउन बट रादर आई ट्रेड द रीटेस्ट के आने के बाद में करूंगा. बिकॉज ब्रेक डाउन ट्रेड जो होता है यस थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर भी ज्यादा हो जाता है. तो वी वांट सम सॉर्ट ऑफ अ सेफ्टी एंड एक्सपायरी डे पे ए रीटेस्ट को हम लोग ट्रेड करेंगे इन द टुवर्ड्स द शॉर्ट साइड. बट अगेन मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पे आता है 20 to 500 लेवल्स के आसपास आता है तो देन एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है ऑफ कोर्स विद अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस. एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बन सकता है. अगेन बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रेड्स डोंट इनिशिएट राइट एट द लेवल्स. ये तीन चीज़ों को
definitely wait करो, either some sort of a M pattern or a double top pattern on a 1 minute or a 3 minute time frame, and at the same time look for some liquidity sweep. Liquidity sweep क्या होती है, मैं एक separate वीडियो बना के मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा. ऑप्शन चेन पे, ऑप्शंस पे अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है, स्पेशली शॉर्ट गमा प्लेयर्स का अगर लिक्विडिटी स्वीप होता है, वहां पे एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है. वहां पे हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, और यू कैन इवन वेट फॉर 3 मिनट कैंडल पे एक रेड एनगल्फिंग कैंडल का भी वेट करके उसका हाई को ही स्टॉप लॉस लेके उसका ब्रेकडाउन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू have some good risk reward propositions and increase the probability of winning. तो वही चीज करने वाले हैं. अगर मार्केट इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, तो then expect the straddle to spike back above 500 levels, and then I would give markets the first 30 minutes breathing space. पहले 30 minutes का रेंज बनने को मैं देता हूँ. If at all कल के ट्रेडिंग में मार्केट्स यहाँ पे आएगा, तो then जरूर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा, बट अगेन दिस विल बी अ स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड. व्हाट डू आई मीन बाय स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड? तो यहाँ पे जरूर मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा, बट अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, then I would like to go in the direction of the trend, because markets ने यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है. तो तीसरी बार अगर यहाँ पे आएगा, तो डेफिनेटली there is a high probability that it's gonna breach. But again इसका probability है काफी कम हो जाता है, because markets कल करंटली 82,300 लेवल्स के आसपास है. तो मार्केट्स अगर 81,700 के नीचे खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है, तो देन एक पॉसिबिलिटी बन सकता है ये ब्रीच होना. अगर मार्केट्स इंट्राडे में इवन 81,800 के आसपास भी खुल के ये ट्रैवल करेगा, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स ट्रैवल करेगा, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है फ्रॉम ऑल दीज शॉर्ट प्लेयर्स. तो यहाँ से वापस मार्केट एक बाउंस दे सकता है. अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है, तो 82,800 के आसपास अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो देन आई वुड गो फॉर 83,000 शॉर्ट स्ट्रैडल्स. तो आइडियल सिनेरियो ये हो जाता है कि लाइक मार्केट 83,000 लेवल्स के आसपास चॉप करेगा. तो फर्स्ट आईड वांट सम सॉर्ट ऑफ अ डे लो. अगर 15 मिनट के आसपास एक शार्प एक ग्रीन कैंडल बन जाता है गैप अप के साथ, कैंडल का लो को मैं स्टॉप लॉस मान के मैं 83,000 का एक स्ट्रैडल में ट्रेड कर सकता हूं, बिकॉज 83,000 स्ट्रैडल वुड बी अवेलेबल फॉर मी समवेयर अराउंड 450 रुपीज. तो 450 रुपीज बोले तो लाइक माई होल्डिंग पावर विल बी समवेयर बिटवीन दिस लेवल एंड दिस लेवल. तो इस रेंज के बीच में स्ट्रैडल को होल्ड कर सकता हूं. एंड गिवन रेंज ऑफ टुडे, तो आज भी मार्केट कहीं ना कहीं 600 to 700 पॉइंट्स के बीच ही मतलब मार्केट्स ओपन हुआ था. एंड इफ वी ओपन गैप अप, तो बेसिकली मार्केट्स इस रेंज में हॉवर करना चाहिए. ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होगा इस 450 पॉइंट का स्ट्रैडल को होल्ड करना, बिकॉज एट वन पॉइंट द कॉल ऑप्शन बिकम्स 350 एंड द पुट ऑप्शंस ओनली बिकम 80 रुपीज. एंड वहां से वापस आएगा, तो देन कॉल ऑप्शंस बिकम 80 एंड द पुट ऑप्शंस बिकम 350. सो इट्स नॉट गोना बी वेरी इजी टू होल्ड ऑन टू दैट स्ट्रैडल. बट इफ योर पोजिशन साइजिंग इज राइट, देन आई बिलीव दैट यू वुड बी एबल टू होल्ड ऑन टू दोस मार्क टू मार्केट स्विंग्स. तो ऑफकोर्स अगर 82,800 के ऊपर ओपन होगा, तो ऑफकोर्स 82,800 लेवल भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट जैसे एक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे भी एक supply zone था which will now act as a demand zone. But the probability of even a big gap up is also very low. So I am expecting markets कहीं ना कहीं थोड़ा इस रेंज के बीच में खुलने वाला है. एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर द रेंज शिफ्ट हैपन्स, ईदर आज का जो रेंज के ऊपर ट्रेड करने वाला है या उस रेंज के वापस अंदर ट्रेड करने वाला है, इसके बेसिस पे डिपेंड होगा मैं कहाँ पे मैं ट्रेड्स बनाने वाला हूँ. इन एनी केस द मीन रिवर्शन ट्रेड्स आर एज आई एक्सप्लेन बिफोर. तो अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो देन इस एरिया के आसपास लॉन्ग जा सकते हैं. एंड थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर दिस लेवल्स टू टेक डाउन. यहाँ पे मैं लॉन्ग जाने के लिए मैं पसंद नहीं करूंगा. एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद इस रीटेस्ट को मैं ट्रेड करने वाला हूँ, एंड इस हाई को मैं रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे मैं एक शॉर्ट करने वाला हूँ. एंड इन एनी केस इफ द मार्केट कम्स टू दिस, अगर इंट्राडे में 400 to 500 पॉइंट्स ट्रैवल करके मार्केट 82,800 लेवल्स के आसपास आएगा, देन 83,000 कॉल शॉर्टिंग वुड बी अ डिसेंट बेट. बिकॉज यहाँ पे आप 82,800 के आसपास आएगा, तो देन 83,000 कॉल शुड बी आइडियली ट्रेडिंग एट 150 रुपीज. तो 150 रुपीज अगर आप शॉर्ट भी करते हैं, देन आपका होल्डिंग पावर बनता है समवेयर अराउंड 83,200 लेवल्स तक. तो उतना आप होल्ड कर सकते हैं, एंड इसको 250 का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं. अगेन आई एम लाइक थिंकिंग आउट लाउड. मेरा जो सिनेरियो होता है, बहुत ज़्यादा मैं सिनेरियोस को प्लान करता हूँ, बट अगेन उतना ज़्यादा सिनेरियोस को मैं आपको बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो जनरली मैं आपको सिर्फ इतना ही मतलब मैं सिनेरियोस देता हूँ जितना आप digest kar pao. All right, so I'll again see you after tomorrow's expiry. I wish you guys a good monthly expiry on Sensex. I'll see you again tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.